Hey everyone. So today we are going to discuss this cyclic sort pattern. This is the very important pattern. So इसमें हम लोग usually क्या होता है? If you read the question, question is given there is a number range. Okay. या फिर range are inclusive. So इसमें क्या होता है कि suppose we have a number whose size is 4. Okay. And if a number is given, इसका मतलब all the elements in this array should be less than or equal to 4 and greater than equal to 1. So should be in this range. This range is inclusive. Okay. 1, 2, 3, 4, something like this. How like इसमें और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं? Like problem may be like the range is same. Let's say size is 4. It may be possible that 2, 1, 1 and 4. Okay. So इसमें प्रॉब्लम में बी आस्क कि फाइंड द डुप्लीकेट्स फाइंड डुप्लीकेट्स ओके सो हाउ वी विल अप्लाई दिस सॉर्टिंग साइक्लिक सॉर्ट सो इसमें हम लोग क्या करते हैं लाइक सिंस दिस नंबर रेंज आर इंक्लूसिव एंड एक रेंज है नंबर का सो इसमें हम क्या करते हैं एवरी इंडेक्स विल हैव अ एलिमेंट और वो जो एलिमेंट होगा वो इंडेक्स के इक्वल होगा सो लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस इंडेक्स 1. Okay, this index 2, this index 3, this index 4. What I am saying कि इंडेक्स 1 पे 1 होना चाहिए, इंडेक्स 2 पे 2 होना चाहिए, इंडेक्स 3 पे 3 होना चाहिए, इंडेक्स 4 पे 4 होना चाहिए, राइट? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए देयर इज़ अ वन मेथड जो हम n log n होगा, ओके? कि हम सिंपली सॉर्ट करते, तो उस सॉर्टिंग में हमें क्या मिलेगा 1, 1, 2, 4, राइट? नेक्स्ट दिस इज़ द वन वे टू सॉर्ट अगर हम साइक्लिक सॉर्ट यूज करेंगे इस केस में इन दिस केस तो इस केस में क्या होगा वट एवर इंडेक्स विल गेट सपोज आई एम कॉलिंग दिस इंडेक्स 1, 2, 3 एंड 4 ओके सो आई इटरेट फर्स्ट 1 ओके मैं 1 पे इटरेट करूंगा मुझे 2 आया मैं 2 पे जाऊंगा और 2 को रिप्लेस कर दूंगा इसको ओके सिंस 2 पे मेरा 1 था तो इसका मतलब मैं एक इंडेक्स पे जाऊंगा और उसे वहां पे पेस्ट कर दूंगा अब मेरा 1 पे 1 इंडेक्स है तो मुझे कहीं और इटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी while loop will pause here okay next I'll iterate here since my array is modified तो अब मुझे 2 पे 2 मिलेगा विच इज़ अ करेक्ट इंडेक्स तो मैं कुछ नहीं करूँगा उससे अब मैं इटरेट यहाँ पे करूँगा आई फाउंड 1 अगेन मैं 1 पे 1 जाके इटरेट ऐड कर दूंगा दिस इंडेक्स विल एज इट इज़ ओके अगेन आई इटरेट 4 राइट पोजीशन पे तो दिस इज माय सॉर्टेड एरे अब मैं क्या करूँगा इसे मैं फिर से इटरेट करूँगा इस एरे को मैं चेक करूँगा कि ये इस करेक्ट एवरी एलिमेंट इज ऑन करेक्ट पोजीशन और नॉट तो फर्स्ट इटरेट करूँगा 1 पे 1 विच इज़ करेक्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन में मैं चेक करूँगा 2 पे 2 विच इज़ करेक्ट पोजीशन थर्ड पे चेक करूँगा यहाँ पे 3 होना चाहिए था सिंस 3 आर मिसिंग इन दिस एरे it means whatever number is given as the duplicate so there is a suppose there is only one duplicate तो इस केस में हमारे जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज द डुप्लीकेट ओके एंड साइक्लिक सॉर्ट का जो सॉरी एंड साइक्लिक सॉर्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is always an even in worst case also okay
Cool. So we'll see a one problem. Then I think you can understand this. So इस problem में क्या दिया हुआ है? You have a set of integers, yes, okay, which originally contain all the numbers from 1 to n. This is like you can understand from here कि ये जो range दिया गया है, this is inclusive range 1 to n, right? It means that here maybe you can apply the cyclic sort pattern. Unfortunately, due to some error, one of the numbers in S got duplicate to another number in the set, which result in the repetition of one number and loss of the another number. Okay, understand this. Repetition of one number. Okay, there is a duplicates and loss of the another number. There is a missing. Okay, you are given an integer nums array nums representing the data status of the this set after the error. Find a number that occur twice and the number that is missing and return them in the form of array. Okay. So there is a two example is given. So 1, 2, 2 to 4. We'll discuss that. Or there is a constraint also. So constraint is fine. Okay. Now let's pick this example 1, 2 to 4, comma 4. Okay. So what our goal is find the missing number. That's the first. Second is duplicate number. Okay. This is nums. How can we do this? Okay. One way हमारा जो brute force approach, let's see how we'll solve this problem using brute force approach. Okay. First approach हम लोग since this there is a range is given 1 comma 4. Since our size is 4, so there's a 1 comma n where n equal to 4. Okay. So सारे नंबर इसी रेंज में होने चाहिए, right? So brute force approach क्या होगा कि हम simply हम इसे using two for loop we can simply find out the duplicate number. Okay, हम iterate करेंगे यहाँ से and then we'll iterate rest of the array. We'll see कि one is already in this array or not. Second time हम iterate करेंगे and right part में check करेंगे कि हमारा वो array है कि नहीं. If there is a array, there is an element, sorry. So this element is found in the right array. So it means there is a duplicate. So that number we can find out as a duplicate. And other ways इसका क्या है कि let's say हम whatever number है हम फोर एलिमेंट ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट -1 ऐड कर लेंगे इस समय एंड इफ नंबर इज फाउंड तो उसे 1 करेंगे विच इज 0. ओके. इफ नंबर इज 2 इज गिवन इज सॉरी बाय डिफॉल्ट लेट्स पिक 0 ओनली. ओके. बाय डिफॉल्ट 0. तो अगर 1 आया तो काउंट 1, 2 आया तो काउंट 1 एंड सेकेंड टाइम 2 आया सो दिस इज गोइंग टू बी काउंट 2. This is going to be count to 4, the 3, there is no 3, 4 पे आया तो 1. So हम फिर से इसे array को iterate करेंगे. We'll see. We'll see कि इसमें which number is equal to value equal to 2. It means this is the duplicate. Okay. And how we will find the missing number in this case? इस केस में if value equal to 0 इसका मतलब वो value missing है, right? Cool. This is a brute force approach where time complexity needed is big of n square probably because we are iterating twice. Mm, sorry, I was talking about this. In this case, this is big of n square.
And in this case, the time complexity only big of n because we are iterating only once. And अगर हमें वो एलिमेंट मिलता है तो use another array as a space, right? So space complexity हमारा in this case big of n हो जाएगा. So remember one thing here, in brute force approach we only found the duplicates, not the missing number. Okay, so how you will find the missing number? If you find the duplicate number, so easily we can या तो 1 to 4 हम इटरेट कर लें और वो नंबर हम सिंपली चेक करें इफ हमारा I value is in nums or not. If it is not, it means that is the missing number, right? So that is again big of n square. That's the brute force approach. This if you use a space, that is a little bit optimal approach, but we are using a space here. Okay. Next, we can further optimize this. Okay. How? Let's understand this. So let's see. हम पिक कर लेते हैं सेम एग्जांपल 1, 2, 2, 4. मान लेते हैं अगर हमारा सारा एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे होते हैं एंड करेक्ट होते हैं तो ये हमारा रियल एलिमेंट होता है 1, 2, 3, 4 वेयर n इक्वल टू 4. ओके, सो इस केस में हमारा जो हमारा रियल सम होता, लेट्स कॉल इट आर एस n इंटू n+1/2, right? In this case 4 into 5/2, which is 10, right? और इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल सम. जो अभी हमारा एक्चुअल सम है वो अभी क्या है 2 to 4, 4, 4, 8, which is 9. Okay, this is our actual sum. And let's see, we will find another sum which is unique sum. What is unique sum? इसका मतलब हम अगर मैं इसको एक सेट में कन्वर्ट कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 4 ओनली. So unique sum is the sum of unique elements of this array. तो ये कितना हो जाएगा 4 to 6, 7, right? Now we have what? We have actual sum, we have real sum, and we have unique sum. So how we will find duplicates and missing? Okay. So understand this. हमारा जो रियल सम है अगर मैं अपने रियल सम से यूनिक सम को सब्ट्रैक्ट कर लूं which is 10 minus 7, right? What I'll get 3. That is nothing but my missing number, correct? और अपने अगर मैं एक्चुअल सम से यूनिक सम सब्ट्रैक्ट कर लूं which is 9 minus 7 equal to 2. This is what? Duplicate number. Okay. It means that real sum minus unique sum equal to missing and actual sum minus unique sum equal to duplicates. Right. So there is a formula you can get here. It means that real sum minus actual sum equal to missing minus duplicates. Okay. Let's come to optimal solution. अब हम क्या करते हैं हमारा जो एग्जाम्पल था 1, 2, 2, 4, इस केस में हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल सम को निकाल लेते हैं. तो इस केस में हमारा एक्चुअल जो सम होगा वो कितना होगा विच इज 9, राइट? एंड हमारा जो रियल सम होगा विच इज 10, राइट? अब हम क्या करते हैं
इस एरे की पोजिशनिंग करते हैं यूजिंग द साइक्लिक सॉर्ट। अगर हम इस एरे की रिपोजिशनिंग करें, सो सिम्स लाइक दिस एरे इज ऑलरेडी इन पोजीशन। सो वन इंडेक्स पे 1 आएगा, 2 इंडेक्स पे 2 आएगा, 3 इंडेक्स पे सिंस दिस इज देयर इज अ मिसिंग वैल्यू 2, तो वो वहीं पे रहेगा, 4 इंडेक्स पे 4 आएगा, राइट। आफ्टर since this array is already in sorted manner, okay, next steps हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग फाइंड आउट करेंगे। वी विल इटरेट दिस और हम चेक करेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स हमारा एलिमेंट या फिर वैल्यू के बराबर नहीं होता, ओके, इफ इंडेक्स माय इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, इट मीन्स दैट दिस इंडेक्स इज मिसिंग। इंडेक्स इज नथिंग बट दैट वैल्यू, जो हमारा जो मिस हो जाएगा वो इंडेक्स होगा, करेक्ट। तो इस केस में चेक करते हैं, 1 पे इटरेट होता है, दिस कंडीशन इज नॉट अप्लाई, सेकंड पे नॉट अप्लाई, थर्ड पे ये अप्लाई होगा, सिंस थर्ड इज इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ओके, इसका मतलब और मिसिंग इज 3, राइट। अब हम यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट फाइंड आउट कर लेंगे। हाउ, मिसिंग, ओके, मिसिंग प्लस, ओके, तो इस केस में हम डुप्लीकेट फाइंड आउट करते हैं, 3 प्लस हमारा जो रियल सम था, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माइनस, ओके, तो माइनस क्या करते हैं, जो रियल सम था हमारे केस में, इस केस में 10 माइनस 9 विच इज 1, so 3 minus 1 which is 2, okay. So using this way we can easily find out the our duplicates, so we have to return only what, duplicates comma missing which is 2 comma 3. In this case our solution will be this, okay. Let's see how we'll code this. Let's code this. Since let's see our array name is num, so हम initially क्या करेंगे, uh, let's call it diff find errors, and इसमें हमें nums दिए गए हैं, okay. We can easy first find the length of this num and then हम क्या करते हैं, एक्चुअल सम निकाल लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअल सम हमारे क्या था, सम ऑफ दिस नम्स, रियल सम निकाल लेते हैं, एन प्लस 1/2 यहाँ से निकल जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम रिपोजिशनिंग करते हैं अपने एरे की, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से माय इंडेक्स इज आई फॉर द सेफ साइड, उसके लिए हम इनिश इंटरनली एक फॉर लूप रन करेंगे वेयर माय इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू वी माइनस आई। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स होगा हम उसे असाइन कर देंगे वी माइनस आई, ओके। और हम एक टेम्परेरी वैल्यू ले लेंगे, जो जो भी हमारा वी माइनस आई इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसे असाइन कर देंगे। फिर हम नम्स के अंदर वी माइनस आई पोजिशन पे वो वी वैल्यू असाइन कर देंगे। व्हाट वी आर डूइंग हियर, बेसिकली वी हैव 2 1, सो 1
सो जी 1 2 3 सो हमें हमें 2 मिला, सो हम 2 पोजीशन पे जाके हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और 1 को हम टेम्प में ऐड कर दे रहे हैं अभी, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि हमें 1 की भी रिपोजिशनिंग करनी पड़े। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग हियर इज b minus 1 इक्वल टू v। ओके, नेक्स्ट में हम एज आई सेड कि हमें 1 की भी रिपोजिशनिंग करनी पड़े, तो मैंने v के अंदर टेम्प ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद हमें रिपोजिशनिंग मिल जाएगी। लेट्स पिक अ वेरिएबल, लेट्स से मिस इक्वल टू -1 और उसके बाद हम फिर से एरे अपना रन करते हैं इन नम्स। इसके अंदर हम सिंपली पिक करते हैं, अगर हमारा जो भी इंडेक्स होगा अगर हमारे वैल्यू के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट दिस इज माई मिस नंबर। ओके, हम सिंपली यहाँ से ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद हम डुप्लीकेट्स अपना फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज माई डुप्लीकेट्स? द माई डुप्लीकेट्स वाज actual sum minus something, right? Real miss minus something here. Miss minus actual sum, sorry, real sum minus actual sum. Okay, and we'll simply return duplicates, comma, miss. Cool. Let's see your code. Cool. As you can see here, हमने एक नम एन लिया है एक्चुअल सेम। यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। एक्चुअल सेम सम इज माई सम ऑफ एन नंबर्स। ओके, और रियल सम हमारा जो भी रियल सम है, हम मैंने यहाँ पे नेमिंग थोड़ी सी अपोजिट हो रखी है। एंड फॉर फिर हमने इटरेट किया, रिपोजिशनिंग किया हमने अपने एरे की, और मिस मैंने ऐड किया -1 यहाँ पे, लेस दिस माय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और उसके बाद हमने फिर से हम एरे रिपोजिशन्ड एरे को इटरेट किया, व्हिच इज़ वी कैन से अ सॉर्टेड एरे। ओके, उसके बाद हमने चेक किया कि i+1 अगर हमारा वैल्यू के बराबर नहीं है, सो दैट मीन्स दैट इंडेक्स इज़ माय मिसिंग इंडेक्स एंड दिस इज़ माय मिसिंग वैल्यू एज़ वेल। तो डुप्लीकेट हमने निकाल लिया रियल सम, सिंस हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया है, सो और फॉर्मूला विल चेंज अ लिटिल बिट, रियल सम माइनस एक्चुअल सम प्लस मीन मिस। ओके, cool. Okay, so as you can see हमने दिस इज कांस्टेंट स्पेस, दिस इज कांस्टेंट स्पेस, हमने सेम एरे को रिपोजिशन किया है। सो दिस इज अ साइक्लिक सॉर्ट जो ये फॉलो कर रहा है रन यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज रिक्वायर्ड say n const number of length, whatever the length is there, nums, so which is n, big of n is required here, and हमने reiterate किया है, so in worst case this can also be a big of n, so basically n plus n, which is nothing but a big of n as only, and this is a constant, so overall time complexity हमारा big of n ही होगा, and space complexity uh, is not needed here, which is much more optimal than previous one that we discussed. Okay. Next, if you wanted to try another problem on the same pattern, you can try this problem. Find the duplicate number. Okay. Uh, as you can see this problem, this range are inclusive here, I think 1 comma n, right? So basically इसमें हमें एक सिर्फ duplicate number find out करना है. So let's say 1 3 4 2 2. Okay. In worst case, you can say the time complexity
हम अगर दो फॉर लूप रन करेंगे दैट इज द एन स्क्वायर, या फिर अगर हम एक स्पेस लेके और एक फॉर लूप लेके रन करेंगे दैट इज ऑल्सो ऑप्टिमल सोल्यूशन, एंड yeah, that is also optimal. But you can see here, okay, there is only one repeated number in the nums. This is very important, and you must solve this problem without modifying the array. So there is another way to more optimal solution of this problem is हम simply nums को rearrange कर दे. ओके, वन की पोजीशन वन कर दें, टू की पोजीशन टू पे कर दें, थ्री की थ्री पे करेंगे, फोर की फोर पे करेंगे, तो फाइव पे हमें जाके डुप्लीकेट नंबर मिल ही जाएगा, राइट? दैट इज द विदाउट यूजिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस. सो फिर हमारा बिग ऑफ एन में दिस वी कैन एबल टू सॉल्व दिस, बट हियर इज द कंस्ट्रेंट कि हम नम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू यूज द only constant extra space. This is very important. Like, try to solve this problem. And there is a follow-up as well. How can you prove that the list one duplicate number must exist? Okay, we'll discuss the formula. You can use that formula probably to see this whether there is a duplicate number exist in this array or not. Can you solve this problem in linear time complexity? Yes, if we can modify these nums. If not, then there is another solution we can figure out. You can try out. Thank you.